تمام بہن اور بھائی کو میری اور میری فیملی کی طرف سے سلام پہنچے۔ آئیے ہم اپنی عبادت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ابتدائی دعا کریں، میں شکر گزار ہوں آپ سب کی، اور اس سے بڑھ کر اپنے خداوند یسوع المسیح کی، جس نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمیں دور اور نزدیک سے اس پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ آپ سب کو اس مسیح محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پوری عبادت کے ماحول کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپیں۔ جتنی جانیں اب تک ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں، ان کے لیے شکر گزاری کریں، اور جو آنے کو ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی جلد سے جلد ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اب ہم اپنی ابتدائی دعا سارا کے ساتھ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ باپ بیٹے روح القدس نام سامین باپ کا شکر کرتا ہے کہ ہم موقع دیں، آپ کو میں حاضر آ کے پاک کلام کو پڑھنے آپ کو پرستش کرنے لگے ہیں۔ اس وقت کے لیے ہم دل کی ادا کرتے ہیں، ہم سب کا ہاتھ ہے، آپ جتنی دعائیں کریں آپ کو بولنا، آپ کو پسند کر ہمیں رزق ملے، جتنی پرستش کریں آپ آپ کا حضور پہنچے گا، ہماری پرستش تک لگ جائے، ہمیں پاک کلام سنیں باپ، ہمارے لیے باعث برکت ہوئے باپ، ہم اس میں عمل کر سکیں باپ، ہم جو پاک کلام آپ کا پڑھیں باپ، اس میں کوئی بھید کی بات ہم اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں باپ، بھید ہم پہ کھلے باپ، ہم سب کا ہاتھ، ہم سب بخش دیجیے آپ اس پورے منڈے کا ہارڈ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کسی طرح کے کرپشن سے آپ دور رکھیے گا آپ، ہم سب کا ہاتھ ہم سے کسمت بخش دیجیے آپ، میرے شدا حسن کو قبول کیجیے، یسوع مسیح ناصری کے نام ہے، آمین۔ آمین، گاڈ بلیس یو۔ اب ہم اپنی ورشپ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھیں گے حمد و ستائش کا گیت سو زبور۔ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم اپنی ورشپ کا آغاز کرتے ہیں اور سسٹر انجنا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ گیت گانے میں ہماری رہنمائی کریں۔ Praise the Lord. پریز دی لارڈ۔ تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداوند، تیرے لہو سے خداوند ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، خون میں تیرے قدرت ہے، دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے، تیرے لہو کی یہ ندیاں، تیرے لہو کی یہ ندیاں صبح و شام بہے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداوند، تیرے لہو سے خداوند ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے،
यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अबदी जीवन हर एक को, अबदी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग लगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आगे हम वर्शिप में बढ़ेंगे और सिस्टर सनिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गीत गाने रहनुमाई करें। हेलो, Thank you, sister. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hello. हाँ जी, Hello. हेलो। Praise the Lord. हाँ जी, आवाज आ आवाज रही है। आ रही है बाजी? जी आ रही है। ठीक हो गया। मैनू यसू दा लहू ऐ तो ही जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा हो ही जांदा ए। मैनू यसू दा लहू ऐ तो ही जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा हो ही जांदा ए। मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। मैनू यसू दा लहू हत्थां पैरां विच जदों किल ओदे ठोकदे, हत्थां पैरां विच ओदे किल जदों ठोकदे। मेरे हिस्से आंदे जो सजावां दुख रोकते, मेरे हिस्से आंदे जो सजावां दुख रोकते, सजावां दुख रोकते। ओदी वेख कुर्बानी दिल रोई जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। मैनू यसू दा लहू ऐ तो ही जांदा ए, मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए। ऐनी खुशी दित्ती जेड़ी जांदी ए संभाली ना, ऐनी खुशी दित्ती जेड़ी जांदी ए संभाली ना। फजलां दी गल जेड़ी
जावे जेड़ी टाली ना फजलां दी गल जेड़ी जावे इत्थे टाली ना जावे इत्थे टाली ना बोझ अपने ते सो मेरा उठाई जांदा ए मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए मैनू यसु दा लहू ऐदा तोई जांदा ए मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए ओदी दित्ती जिंदगी जेड़ी मैं बितानी हां ओदी दित्ती जिंदगी जेड़ी मैं बितानी हां कीतियां दुआवां विच सब कुछ पानिया कीतियां दुआवां विच सब कुछ पानिया सब कुछ पानिया यसुरू जा बदन च समाई जांदा ए मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए मैनू यसु दा लहू ऐदा तोई जांदा ए मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए मेरा सब कुछ नवा नवा होई जांदा ए थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। बेशक खुदावन का लहू हमें नया करता है, खुदावन का लहू में सब कुछ है। खुदावन का शुक्र करते हैं उसके लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सिस्टर जी गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे और अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आगे हम वर्शिप में बढ़ेंगे और सारा समर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गीत गाने में रहनुमाई करें। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बस 2 मिनट। ठीक। ओके, ठीक है, हम गाने लगे हैं। जी ठीक है।
हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। बेशक खुदावंद अपने लोगों में आता है तो जलाली काम होते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। खुदावंद की हमद करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है। मुबारक है वो जो अदल करता है और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ऐ खुदावंद, उस करम से जो तूने अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी निजात मुझे इनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरज़गीदों की कमाल मंदी दिखाऊं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी महराज के लोगों के साथ फख्र करूं। आगे हम गीत गाएंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, तेरे आने से आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पे गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। डाकू को सूली पे यीशु ने माफ किया, खून की धारा से धागों को साफ किया, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं यीशु तेरे आने से, आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया 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 हालेलुया। शुक्रगुजार है खुदावंद यीशु जी, तू जहाँ मौजूद होता है वहाँ सारे हालात को तू कंट्रोल कर लेता है यहोवा जी। इस सताइश के लिए, प्रस्तिश के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद। जिन बच्चों ने खुदावंद तेरे आगे सताइश का नजराना रखा उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा जी। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावंद। आज की मीटिंग का सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं यहोवा जी। मैं खुदावंद आपकी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार है, आपकी अबर के लिए है खुदावंद शुक्रगुजार, आपकी शफकत के लिए है खुदावंद यीशु जी जो तू हम पर रखता है। ऐ खुदावंद हम सब का मिलकर आपके कदमों में झुकना आपको पसंद आए यहोवा जी। ऐ खुदावंद यीशु जी जो प्रस्तिश हमने की है खुदावंद वो आपके हुजूर बाहूद की माहने पहुंचे, और ऐ खुदावंद अभी जो अगले हिस्से में है खुदावंद कलाम को सुनने को है खुदावंद यीशु जी, तू हम सबको तैयार कर। है खुदावंद हमें मसाशुदा कान दे,
ऐ खुदावंद हमें पाक रूह के मसा से भर दे ऐ खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारे बंद गूदे से होकर गुजरे और ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐ खुदावंद जो भी ऐ खुदावंद प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से ऐ खुदावंद कैंसल हो जाए ऐ खुदावंद यीशु जी। ऐ खुदावंद तेरा बर इसी तरह हम पे बना रहे। हम जहाँ भी बैठे हैं खुदावंद डिवाइस पर, इंटरनेट की तमाम डिवाइस पर ऐ खुदावंद तेरे पाक लहू को मांगते हैं। ऐ खुदावंद जब तेरा कलाम बोया जाए तो ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करे। ऐ खुदावंद हम घटे और तू हम में बढ़े ऐ खुदावंद यीशु जी। तू हम में नजर आ ऐ खुदावंद यीशु जी। तुझसे मिन्नत करती हूँ ऐ खुदावंद, बाजी को आपके कदमों में लाती हूँ ऐ खुदावंद, उनको सर से लेकर पांव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ ऐ खुदावंद यीशु जी। तेरा पाक लहू उनको आगे पीछे से घेरे ऐ खुदावंद, वो जो कुछ भी बोले ऐ खुदावंद तेरे पाक लहू की हदायत से बोले ऐ खुदावंद, उनकी जबान का तू जिम्मा ले ऐ खुदावंद यीशु जी। आज का कलाम हमारे लिए सबके लिए ऐ खुदावंद बाइस से बरकत हो और ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐ खुदावंद जो भी ऐ खुदावंद कमियां हैं, कमजोरियां हैं, घाटे हैं, वो यीशु के नाम से पूरे हो जाएं ऐ खुदावंद। मीटिंग के अगले हिस्से को ऐ खुदावंद आपके हैंड ओवर करती हूँ ऐ खुदावंद। तू सारा ऐ खुदावंद सारी मीटिंग पर ऐ खुदावंद तेरे कंट्रोल को मांगती हूँ ऐ खुदावंद, तेरे पाक रूह को मांगती हूँ, सब कुछ तेरे कदूस और जलाली नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आगे मीटिंग बाजी चेंज करेंगे। जी प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद प्रेज द लॉर्ड जी। खुदावंद आपका बड़ी बरकत दे सरफीन, खुदावंद इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और खुदावंद का मसा आपके ऊपर ठहरा रहे। खुदावंद आपको अपने परों में छुपा के रखे, अपनी फैमिली के लिए, इस ग्रुप के लिए खुदावंद आपको बाइस से बरकत बनाए और खुदावंद सनिया को, अंजना को, श्रेया फैमिली को खुदावंद बड़ी बरकत दे, जिन्होंने अपने हदिये नजराने खुदा उनके हुजूर चढ़ाए। खुदावंद इसी तरह अपने जलाल के लिए इनकी आवाज़ों को, इनके गलों को इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद का मसा हमेशा आप सबके ऊपर ठहरा रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम आज स्तिशना 19 बाब पढ़ेंगे और मेरे ख्याल साथ हमारे रविंदर है, लेकिन रविंदर नहीं आई है ना। हाँ जी, तो वो अंजना कह रहे थे कि मैं करूंगी। ठीक है जी, अंजना करेंगी और उर्दू में तबस्सुम है घर मेरे ख्याल हमारे साथ। हाँ जी, तबस्सुम है जी बाजी मैं हूँ। हाँ जी, तो 19 चैप्टर है, ये हम पढ़ते हैं, है ना, आधा आधा कर लेते हैं जी। अंजना। हाँ जी हाँ जी यदि टोटल 21 जी बाजी 10 पढ़ लेंगे। हाँ जी, पहला मैं पढ़ ਲਾਂ। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨੀ ਥਾਈਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਜੋ ਹਰ ਖੂਨੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਭੋਲੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਵਣ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੱਕ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਫਲ ਦਸਤੇ ਤੋਂ ਘਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੱਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਦ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੂਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ
ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੀਕ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਹਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਆਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। हाँ ਬਸ जी, तो ਮਿਸਟਰ ਹਾਂਜੀ 11 वर्स तो रीड करें। लेकिन अगर कोई शख्स अपने हमसाया से अदावत रखता हो, उसकी गात में लगे और उस पर हमला करके उसे ऐसा मारे कि वो मर जाए और वो खुद उन शहरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके शहर के बुजुर्ग लोगों को बेचकर उसे वहां से पकड़वाओ मंगवाएं और उसको खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ में हवाला करें, ताकि वो कत्ल हो और तुझको उस पर जरा तरस ना आए, बल्कि तू इस तरह बेगुनाह के खून को इसराइल से दफा करना ताकि तेरा भला हो। तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है और अपने हमसाया की हद का निशान जिसको अगले लोगों ने तेरी मेरास के हिस्सा में ठहराया हो मत हटाना। किसी शख्स के खिलाफ उसकी किसी जो उससे सरजद हो, एक ही गवाह बस नहीं बल्कि 2 गवाहों या 3 गवाहों के कहने से बात पक्की समझी जाए। अगर कोई झूठा गवाह उठकर किसी आदमी की बदी की निस्बत गवाही दे, तो वो दोनों आदमी जिनके बीच ये झगड़ा हो खुदाउन के हजूर काहिनों और उन खड़े हों और काजी खूब तहकीकात करें, और अगर वो गवाह झूठा निकले और गवाही दी हो, तो जो हाल उसने अपने भाई का करना चाहा था वही तुम उसका करना, और यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना, और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और तेरे बीच फिर ऐसी बुराई नहीं करेंगे, और तुझको जरा तरस ना आए। जान का बदला जान, आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत, हाथ का बदला हाथ और पाँव का बदला पाँव हो। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू तबस्सुम और अंजना, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद इसी तरह आपको इस्तेमाल करता रहे, खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेद आपके ऊपर खोले, रूहानी आंखों को, रूहानी कानों को खोले, कि आप क्या खुदावंद की आवाज को सुन सकें। गॉड ब्लेस यू जी। आज का चैप्टर इस पे हमने वैसे बात की हुई है, लेकिन मैं कुछ नए हैं तो हम इस पे हम बात करेंगे। एक तो ये शहरों की जो है और जो झूठी गवाही है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। खुदावंद ने हमें पता है कि जब से ये हम इस्तशना की किताब शुरू की हुई है, तो हम देख रहे हैं कि खुदावंद मूसा के ज़रिए अब जो नई नस्ल थी, यानी जो जब मिस्र में से वो निकले थे, तो जो पुराने थे या इनके माँ बाप से थे, बूढ़े जो थे वो मर गए थे, तो अब ये नई नस्ल जो थी 40 सालों में जो पैदा हुई, उनसे खुदावंद जो है मूसा के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं ना, हमें पता है। तो जब कोहे सीना पे या शरीयत वो सारे जो हुक्म थे दिए गए, तब ये जो बच्चे थे वह तब वहाँ पे नहीं थे, है ना। तो इसलिए खुदावंद अब उनको जब अब उन्होंने यरदन के पार जाना है, हमने ये जब इस्तशना की किताब शुरू की तो हमने देखा कि ये अब यरदन के उस जगह तक पहुंच गए हुए हैं, है ना। तो अब इन्होंने उस पार जाना है, यरदन के उस पार, यानी कि जहाँ पे इसराइली कौम है और इसराइल का मुल्क है जहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, खुदावंद मूसा के जरिए बातचीत कर रहा है, वो
हुक्म जो थे, सारी शरीयत जो थी, उनके साथ मूसा के ज़रिए बातचीत हो रही है ना? तो हमने देखा था कि खुदावंद ने कहा कि जब तू उस मुल्क में पहुँच जाए जहाँ जो खुदावंद ने वादा किया है, उस पे कब्ज़ा हो जाए आप मुल्क मुल्क कनान पे, तो वहाँ पे 3 जो शहर थे, वो बनाना। और फिर खुदावंद ने आगे चल के जो 9 आयत है उसमें कहा कि 3 और शहर बनाना, यानी कि 6 शहर जो हैं टोटल जो थे, वो खुदावंद ने उन लोगों के लिए मुकर्रर किए जो अ, जिनसे अनजाने में खून हो जाता है, यानी खूनी जो लोग थे, जिन्होंने किसी भी तरीके से यानी उनसे अ, यानी उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, कोई प्रोग्राम बना के, प्लान बना के, लेकिन उनसे किसी तरीके से ऐसे खून जो थे वो हो गए थे, यानी उन पे अ, कत्ल का कह लें जो इल्ज़ाम था वो लग गया हुआ था। तो वो क्या करें, वो उस ये शहर जो थे 3 यरदन के इस पार और 3 यरदन के उस पार खुदावंद ने कहा कि बनाना, और ताकि वहाँ पे जब तक उनका फैसला ना हो जाए कि वाक़ई कैसे हुआ ये सारा, यानी जो भी अ, इंसाफ जो है वो सरदार काहिन जो था वो किया करता था। खुदावंद ने ये सारा हमने पीछे जो था उसमें ख़ुरूज की किताब में पढ़ा था, और आगे भी चल के हम पढ़ेंगे। तो असल में ये 6 शहर जो हैं, ये बड़े ख़ास कह लें, इनका हम कह लें कि एक मकसद है बनाने का, और ये अब हमारी ज़िंदगी में कैसे जैसे कह लें अप्लाई होते हैं, या हमें इनके बारे में क्यों पता होना चाहिए, है ना? तो ये हम थोड़ा-सा सीखते हैं। पहले ये हमें वाक़ई पता हो, जो रेल में जो इसराइलियों ने क्यों बनाए थे इसलिए। तो दूसरा, अब हमें कैसे इनसे, हमारे लिए ये शहर कहाँ पे है ना? तो ये हम थोड़ा-सा आज सीखेंगे कि खुदावंद ने कहा कि ज़रूर उनके लिए जो जो अनजाने में जिनसे कत्ल हो जाता है, उनके कोई छुपने की जगह हो जब तक के उनका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, है ना? तो ये शहर जो हैं, ये हमें इस्तिश्नाही की किताब में, अभी वर्ष नहीं हम पढ़ेंगे, उसी में हमें मिलता है कि खुदावंद ने कहा कि वो ज़्यादा दूर ना हो, यानी वो तकरीबन आधे दिन का यानी सफ़र हो, जहाँ पे भाग के जो है, जो खूनी है, खून उससे हुआ है लेकिन उसने कोई प्लान बना के नहीं किया, तो वो भाग के वो वहाँ पे चले जाएँ ताकि उनको ज़्यादा जिसे कह लें दूर ना भागना पड़े, वो इतने नज़दीक हों बाकी शहरों के, जितना कि एक जैसे आधे दिन का जो सफ़र है अ, हो, ताकि जो खूनी है वो जल्दी-जल्दी भाग सके। और फिर लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि वो रास्ता जो है वो सीधा हो, यानी जैसे टेढ़ा-मेढ़ा होता है या इधर-उधर जो शहर है, वैसे ना हो, वो सब रास्ता जो है वो सीधा हो, वो सीधा उस शहर की तरफ जाता हो। ये आयतें हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़िक्र जो है जैसे कह लें यशवा की किताब में भी आगे होगा, और भी हम आगे चल के देखेंगे, तो इसलिए व आगे चल के हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी ये कि वो शहर जो था वो नज़दीक होना चाहिए, वो रास्ता जो है वो सीधा होना चाहिए, ये खुदावंद ने कहा ताकि वो जल्दी-जल्दी उस शहर में भाग जाए, जो खूनी है, ताकि कहीं जो उसके पीछे अ, जिसके रिश्तेदार का या किसी का खून हुआ हो, तो जब वो उनको पकड़ने के लिए पीछे भागें, तो वो जल्दी से वहाँ पे छुप सके, वहाँ पे भाग सके, वहाँ पे जाके पनाह ले सके, है ना? तो फिर जब वो उस शहर में अ, चला जाता था या छुप जाता था, वो जो खूनी होता था, तो दरवाजे के अगर वो अंदर दाखिल हो गया तो वो जो उसको पकड़ने के लिए आ रहे होते थे, है ना? तो वो फिर उसको पकड़ नहीं सकते थे, और वहाँ पे जो बुजुर्ग होते थे या जो भी उस शहर में होते थे, वो उसको बचा लेते थे, या वो उसको अंदर जो है वो ले लेते थे, उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते थे, है ना? तो ये हमें सारे जो हवाले हैं तशना की किताब, यशवा की जो किताब है उसमें मिलते हैं कि वो शहर के अंदर जो थे, अगर वो दाखिल हो जाता था तो फिर उसको वो पकड़ नहीं सकते थे, जब तक कि उसका
फैसला जो है वो नहीं हो जाता था, उसको इंसाफ नहीं मिल जाता था। और ये इंसाफ जो है, जो सरदार काहिन होता था, जो महान पुजारी, हमने पीछे सीखा कि जो अ, सरदार कौन कौन होते थे, जो हारून के हारून और उसके बेटे जो होते थे, है ना, वो सरदार काहिन होते थे। तो वो जाके उन ये जो शहर हैं, वहाँ पे उनका फैसला जो है वो किया करते थे। और फिर जो, जैसे हम कहते हैं कि जी केस चलता था और गवाहों को बुलाया जाता था, या जो भी ये सारा जो प्रोसेस है वो वहाँ पे चलता था। और सरदार काहिन जो है हर शहर में जाया करता था और उनका इंसाफ जो है वो किया करता था, है ना। तो फिर खुदावंद ने कहा, ये जो भी हमने देख रहे थे कि अ, ये शायद आपको नजर आ रहा हो कि ये बीच में यरदन जो दरिया था, ये नजर आ रहा है ना। सब साथी हैं मेरे? हाँ जी। अच्छा, जी ओके जी। तो ये दरमियान में यरदन है। तो अब सबको याद होगा कि जो रोबन है और जद का कबीला और मनस्सी, और अब मुझे याद नहीं है कि ये लोग क्या थे, ये यरदन के इस पार ही रह गए थे। अभी जहाँ पे खुदावंद उनके साथ सारी बातचीत कर रहा है, तो ये मेरा ख्याल है 5 कबीले शायद, या 10, ये पीछे रह गए थे। ये यरदन के इस पार नहीं आए थे, मुल्क कनान की तरफ जो है वो दाखिल नहीं थे आए। इन्होंने कहा कि मूसा, तू यहाँ पे बड़ी हरियाली है, यहाँ पे हमारे जो मवेशी हैं उनके लिए चारे के लिए, खाने के लिए बहुत कुछ है, तो तू हमें हमारा जो हिस्सा है यहीं पे दे दे। इसलिए ये वो यरदन के उस पार नहीं गए थे। आप सबको शायद जो पुराने हैं उनको याद होगा। तो इसलिए जो 3 शहर थे वो यरदन के इस पार बनाए थे, यानी वो मुल्क कनान में दाखिल नहीं हुए थे। और इसलिए फिर 3 शहर उस तरफ बनाए थे, जहाँ पे रोबन का कबीला और जाद और मनस्सी, ये मुझे याद है, बाकी मुझे तो बाकी जो थे वो मुल्क कनान में आ गए थे। और फिर 3 शहर जो थे, ये छुपने के लिए जो वो बनाए गए थे, जो खूनी थे उनके छुपने के लिए बनाए गए थे, है ना, खुदावंद ने ये कहा। और ये 6 शहर जो हैं टोटल, यानी एक किस्म का ये बनाए थे। तो खुदावंद ने कहा कि ये नजदीक हों। तो जो सरदार काहिन है, वो इन 6 शहरों में जाया करता था और उनका इंसाफ किया करता था। और अ, अगर वो उसका इंसाफ नहीं हुआ या कुछ हुआ, अभी उसका फैसला नहीं हुआ, तो वो जो खूनी था वो इन शहरों में ही रहता था, जब तक कि वो सरदार जो काहिन था, वो जो महान पुजारी होता था, जब तक वो मर नहीं जाता था, तब तक वो उसी शहर में, जो छुपने के लिए, उसके पनाह लेने के लिए बनाए गए थे, वहीं पे रहता था। और जब वो सरदार काहिन जो था वो मर जाता था, तो फिर वो अपने जो शहर था, अपने घर जो है वो वापस जा सकता था, है ना? तो ये सारा ये चैप्टर में लिखा हुआ है, मैं अपने से कुछ नहीं बता रही, है ना? तो ये यशया की किताब में हम पढ़ते हैं कि ये 6 जो शहर थे, इनके नाम अभी हम पढ़ते हैं। और दूसरा, हमने ये 6 तो शहर थे, और आगे चल के हम और भी सीखेंगे कि जहाँ पे सुलेमान बादशाह जब बना था, तो उसका भाई जो था, उसका नाम नहीं मुझे याद, तो वो जो था वो कुर्बान जो थी, जो बेदी थी, वहाँ पे जाके भाग गया था। यानी उसको वो खुद से ही बादशाह बन गया था। तो उसको जब मारने के लिए, पकड़ने के लिए सिपाही जो थे या वो लोग आए, तो वो कुर्बानगाह पे छुप गया था। तो इसलिए एक 7वां जो जगह है पुराने अहदनामे में, वो कुर्बानगाह भी है। एक 6 तो ये शहर थे, और 7वीं जो जगह थी, कुर्बानगाह थी। यानी जहाँ पे कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, जहाँ पे जिसको बेदी पंजाबी में कहते हैं, तो वहाँ पे भी अगर भाग के कोई खूनी या कोई जिसने ऐसे कुछ किया होता था, तो वहाँ पे वो जाके छुप जाता था, या वहाँ पे उसको पनाह मिलती थी। तो ये पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि ये 6 शहरों का जिक्र है,
اور قربان گاہ کا ذکر ہے. یہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آگے بائبل تو ہمیں یعنی یہ پتہ چلے گا ہے نا. تو اس لیے ہم وہ ورسز نہیں پڑھیں گے. تو لیکن یہ ایک قسم کے کہہ لیں 6 شہر ہے اور 7ویں جو ہے وہ قربان کا ہے جہاں پہ خونی جو تھا وہ چھپ سکتا تھا. یہ ان کے لیے پناہ گاہ ہوتی تھی. یہ ان کے کیونکہ وہاں اگر وہ چھپ گئے ہیں تو وہاں سے ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ خود وہاں سے نکل نہیں جاتا تھا. تب تک جو جس کا خون ہوا ہوتا تھا اس کے رشتے دار یا وہ پکڑ نہیں سکتے تھے اس کو ہے نا. تب تک وہ اس کی پناہ میں رہتا تھا. تو اس لیے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اب ان کا ہم تھوڑا سا روحانی مطلب بھی دیکھیں گے کہ اب نئے عہد نامے میں ہمارے جو چھپنے کی جگہ ہے یا ہمارے وہ شہر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں نا. تو ہم ایک حوالہ پڑھیں گے اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں. انجنا ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے انجنا نہیں ہے. سریا آپ نکالنا. سریا ہے ہمارے ساتھ؟ یشوا کی کتاب اس کا 20 باب. ہاں جی جس میں یہ 6 شہروں کا ذکر ہے اور 20 باب اگر پہلی آیت سے ہی پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سردار کاہن جو ہے وہ وہاں پہ جایا کرتا تھا اور ان کے فیصلے جو ہے کیا کرتا تھا ہے نا. یشوا 20 باب اور اس کی ہم 7 اور 8 آیت پڑھیں گے جس میں یہ 6 شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مل کے چھٹی آیت سے. ہاں جی اور 6 وہ 7 جب تک اور 8 اور وہ جب تک اور وہ جب تک فیصلے کے لیے جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو اور ان دنوں کا سردار کاہن مر نہ جائے تب تک اسی شہر میں رہے. اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں یعنی اسی شہر میں آئے جہاں وہ بھاگا تھا. بس انہوں نے نفتالی کے کوہستانی ملک میں جلیل کے قادس کو اور افراہیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو اور یہودا کے کوہستانی ملک میں کریت الاربا کو جو ہیبرون ہے الگ کیا اور یرو کے پاس کے یردن کے مشرق کی طرف روبن کے قبیلہ کے میدان میں بصر کو جو بیابان میں ہے اور جاد کے قبیلہ کے حصہ میں راما کو جو جلاد میں ہے منسی کے قبیلہ کے حصہ میں جو لان کو جو باسن میں ہے مقرر کیا. آگے بھی ہاں جی بس ٹھیک ہے. ہاں یہ شہر ہیں 6 جو شہر ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھیں یردن کے اس پار جو تھے جو روبن کا قبیلہ تھا اور جد کا اور منسی کا ہے نا. ان کے قبیلوں کے لیے 3 جو شہر تھے وہ یردن کے اس پار تھے اور جو نفتالی اور یہودا اور کون سا قبیلہ ہے اس کے لیے جو 3 شہر تھے وہ اس طرف تھے یردن کے ہے نا. یرو کے آپ کو یاد ہوگا آگے چل کے ہم پڑھیں گے یشوا ہی کتاب میں کہ جب انہوں نے یرو کو فتح کیا تھا ہے نا. تو اس لیے 3 شہر جو تھے اس طرف تھے. تو اس ٹوٹل جو تھے وہ 6 شہر تھے. تو یہ ان کے لیے پناہ گاہ تھے. یعنی آگے اگر 9 آیت بھی سریا آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یعنی یہ سب کے لیے تھے. یعنی جو مسافر وہاں پہ تھے جو پردیسی وہاں پہ رہتے تھے ہے نا. تو اگر کسی سے خون ہو جاتا تھا تو وہ سب جو ہیں وہاں پہ بھاگ کے جا سکتے تھے ان 6 شہروں کے اندر. تو پھر ہم نے یہ یشوع ہی کتاب میں ہاں جی سریا یہی وہ شہر ہیں جو سب بنی اسرائیل اور ان مسافروں کے لیے جو ان کے درمیان بستے ہیں اس لیے ٹھہرائے گئے کہ جو کہ نادانستہ کسی کو قتل کرے وہ وہاں بھاگ جائے اور جب تک وہ جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو تب تک خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے مارا نہ جائے.
हाँ जी, हाँ, यानी आपको पता है अब भी जैसे होता है कि वो कोई पकड़ा जाए तो उसको तो वहीं पे मार देते हैं उसके रिश्तेदार या जो भी होते हैं, है ना? लेकिन उनसे बचने के लिए जब तक कि उसका फैसला ना हो जाए, इंसाफ ना हो जाए तब तक वो इन शहरों में पनाह जो है वो ले सकता था। और फिर सरदार काहिन जो था वो जाया करता था और उनके फैसले जो है वो किया करता था, है ना? ये जो खूनी होते थे जिनसे यानी अनजाने में हो गया है ना? ये उनकी बात हो रही है। लेकिन जिसने जानबूझ के किया है, जिसके ऊपर जैसे कह लें या तो वो इल्ज़ाम जो है वो साबित हो जाता है, वो कत्ल जो है कि वाक़ई इसने किया तो उसकी सज़ा जो है उसको मिलती थी। यानी वो मौत ही थी उसकी सज़ा, है ना? जैसे एंड किया 21 आयत में पढ़ते हैं कि जान के बदले जान। तो ज़रूर फिर उसकी जान ही ली जाती थी अगर गवाहियों से या उससे साबित हो जाता था कि ये इसने वाक़ई ही या इसने अ, उसको प्लान बना के मारा है ना? तो उसकी सज़ा मौत ही थी। लेकिन उससे अनजाने में हो जाता था या कुछ तो फिर उसकी जो कह लें खलासी जो है वो हो जाती थी, है ना? तो ये जो है ये जैसे कह लें कि अ, उस पुराने ऐहदनामे में या खुदावंद ने ये इसराइलियों से कहा कि ये 6 शहर ये कह लें कि ये खुदावंद का एक उन पे रहम था, उनके साथ एक जैसे कह लें तरस खा के खुदावंद ने ये किया ताकि कि उनके जो अनजाने में हो गया है तो उनको उस तरह सज़ा ना मिले। जैसे अब भी हम देखते हैं कि अ आपको पता ही है कि लोग पूरा गाँव का गाँव या शहर का शहर ही किसी से अगर खून हो गया तो पीछे पड़ जाते और लोग वहीं पे उसको डंडे मार-मार के या उसको वहीं पे मार देते हैं, है ना? लेकिन खुदावंद ने इससे मना किया, इसलिए हम मसीहियों को इस तरह का जब तक अभी उस पे कोई जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ, तो हमें इस तरह जैसे कह लें कि हाथ नहीं उठाना चाहिए या हमें ऐसे गिरोह में या ऐसे उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं हमारे मुल्क में तो बहुत ही ये होता है ना? तो जब तक उस पे साबित ना हो जाए तब तक उसके ऊपर हाथ जो है वो नहीं उठाना चाहिए, है ना? उसका इंसाफ हो और जब इंसाफ हो जाए तो यानी उसका फैसला जो है वो हो रहा है, तो तब ये भी बात जैसे कह लें कि बड़ी मुझे अच्छी लगी कि खुदावंद ने कहा कि कम से कम 2 गवाहों की गवाही जो है वो मानी जाए, है ना? यानी एक की गवाही से नहीं, 2 गवाह जो हैं वो होने चाहिए, है ना? और फिर इसमें एक और बात मुझे ये लगी कि अगर वो झूठा गवाह है, तो जो सज़ा उसको मिलनी थी, जो मुजरिम था, जिसने ऐसा किया था, कोई बदकारी की थी, है ना? गुनाह किया था, तो जिसने झूठी गवाही दी है आपको पता है ये 10 हुक्मों में भी है ना कि तू झूठी गवाही नहीं देना। उसके पीछे भी ये वजह ये है कि जो सज़ा फिर मुजरिम की होती थी, वही सज़ा झूठे गवाह को मिलती थी। है ना? ये 19 और 20 आयत में हम पढ़ते हैं कि जो सज़ा फिर उसको उसके भाई को मिलनी होती थी, जिसके लिए वो झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है ना? तो वो सज़ा फिर उस गवाह को मिलती थी। इसलिए ज़रूर हमें जो हम मसीही हैं, कभी भी झूठी गवाही है ये ज़रूरी नहीं कि खूनी की बात हो रही है और भी कहीं पे भी हम किसी के खिलाफ कुछ बोल रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो अगर हमने नहीं सुना, हमें नहीं पता उसके बारे में कि वाक़ई उसने ये काम किया है या नहीं किया है, तो हमें खामोश रहना चाहिए। हमें बजाए कि हम सुनी-सुनाई बात करें और झूठ बोल दें, है ना? झूठी उस बंदे के बारे में गवाही दे दें कि हाँ, नहीं, वाक़ई वो तो इसी तरह का है या गलत है वो, है ना? तो हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि जो सज़ा फिर उसको मिलनी होती है खुदावंद की कहले तरफ से, वो सज़ा जो हम झूठ बोल रहे होते हैं, वो हमारे ऊपर जैसे कहले लागू हो जाती है। तो इसलिए खुदावंद ने हमें जो हम खुदा के लोग हैं, हमें खुदा ने 10 हुक्मों में हमें मिलता है ना कि तू झूठी गवाही ना देना। तो इसलिए ये भी एक जैसे कह लें मुझे बात मेरे दिल को बड़ी टच की कि ये मैं अपना कहूँगी कि मुझे इस तरह से नहीं पता था कि वो सज़ा जो है वो उसके ऊपर आ जाती है जो झूठ बोल रहा होता है ना? आपको शायद पता हो लेकिन मुझे नहीं था पता। तो इसलिए ये 2 बातें जो थी ये मुझे इस चैप्टर में कह लें
अच्छी लगी, जो मैं चाह रही थी कि हम सबको पता होना चाहिए। तो मुझे जो बोझ मिलता है मैं उनके बारे में थोड़ी-सी बात करती हूँ। तो हम अगर इन 6 जो शहर हैं, हम रूहानी तौर पे अ, अपने ऊपर लें, अब मसीह में आकर हमारे ऊपर ये पूरे होते हैं। तो सुरैया निकालना लूका 23 बाब उसकी 34 आयत में हमें मिलता है कि अब अगर हमसे ऐसा हो जाता है या कुछ होता है। जी, सुरैया हमारे साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। लूका 23 बाब जिसमें हम देखते हैं कि एक तो हमारी वो छुपने की जगह है, दूसरा ये कि अ, कि अब हमारा वो सरदार काहिन है, खुदावंद यीशु मसीह, और जब लूका उसको 23 हाँ, 23 बाब और उसकी 34 आयत 34 कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पे जान दी थी, तो असल में उसने क्या हुआ था हमारे ऊपर ये जो कह लें, जब उसको कह रहे थे कि सलीब चढ़ा दो, सलीब चढ़ा दो, और जब जान दी यीशु थी ने खुदावंद मैं पढ़ दूं, मिल गया। ओके ठीक है, हाँ जी, जिनको मिल गया वो पढ़ते। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े हिस्से किए और उन पर पूरा डाला। हाँ और जी, लोग खड़े हो बस। हाँ जी, ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, वो हमारा सरदार काहिन है ना? तो खुदावंद ने कहा कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जिस तरह सरदार काहिन जो है, वो जाता था और उनके फैसले किया करता था, यानी जिनसे अनजाने में हो गए होते हैं, यानी खून हो गया होता था। तो ये लोग भी जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब चढ़ा रहे थे और कह रहे थे इसको सलीब चढ़ा, तो उनको नहीं पता था। वो अनजाने में ये सारा कुछ कर रहे थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अ कि इनको नहीं पता, खुदावंद तू इनको माफ कर, है ना? तो इसलिए अब हम जो हैं मसीह में जब आ जाते हैं, तो हमारी जो पनाहगाह है, हमारे जो जैसे कह लें हमारे ऊपर जो कत्ल के इल्ज़ाम या जो कुछ हमने किया होता है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने ले लिया। तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि सरदार काहिन जो था वो फैसले किया करता था, या वो अ, उनके जो जुर्म थे अ, वो जाके वहाँ पे उनके जाया करता था। अब हमारा सरदार काहिन जो है, वो हमसे पहले कह लें आसमान पे गया अपने बाप के पास, और वो सारा जो हमारा एक जो फैसले थे, जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगे हुए थे, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, या जैसे हम कह सकते हैं कि उसने सारे जो फैसले हैं, जो हमारे खिलाफ थे, जो हमारे ऊपर जुर्म थे, है ना? हम मुजरिम थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, है ना? तो इसलिए अब हम जो हैं एक बहाल हैं, अब हम जो हैं अब आज़ाद हैं। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने आज़ाद कर दिया, बहाल कर दिया, है ना? तो अगर हम इन जो 6 शहर हैं, उनको रूहानी तौर पे देखें, तो जो यरदन के उस पार थे, यानी रोबन का, जद का और मनस्सी का, जो यरदन के उस पार 3 शहर थे, वो रूहानी तौर पे जब हम खुदावंद यीशु मसीह में चलते हैं, तो ये रूहानी तौर पे पेश करते हैं, यानी जो हम शख्सी तजर्बात जो हैं हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हम पेश आते हैं। यानी जब हम मसीह में आते हैं, तो हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पाक रूह का बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी माँगते हैं, है ना? तो ये 3 शहर जो हैं, ये उनको पेश करते हैं कि हमारा ईमान जो है खुदावंद यीशु मसीह पे यानी हुआ है, और हमारी आस उम्मीद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती है। यानी ये 3 जो पहले शहर जो थे, जो यरदन के उस पार थे, जो रोबन के लिए जो मुल्क कनान में दाखिल नहीं हुए थे, है ना? तो जब ये हम एक्सपीरियंस जो है वो कर लेते हैं, तजर्बात जो हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो ये पहले 3 शहर जो हैं ये उसको पेश करते हैं, जैसा कि हमने सीखा था
کہ جو यरदन के उस पार रह गए थे, उन्होंने मूसा का यानी पानी का बपतिस्मा लिया था और उन्होंने उनको मना जो था आसमान से मिलता था, है ना? और जो कोहे सीना पे खुदावंद ने उनके साथ बातचीत की थी और वो जैसे कह लें आग का बपतिस्मा जो था वो उनको वहाँ पे हुआ था। तो इसलिए ये 3 एक्सपीरियंस थे, ये 3 शहर जो है ये उनको पेश करता है, यानी पानी का बपतिस्मा, पाकरू का बपतिस्मा और जो उनको वो मिली थी, यानी ये सुरैया अपने या तो बस समझो भी निकाल ले या अंजना, है ना? पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत जिसमें यानी हमारे ऊपर यानी खुदावंद यीशु मसीह पे हमारा ईमान, हमारी उम्मीद, हमारा तवक्कुल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पे होता है। या वो 3 जो शहर थे, पहले शहर, वो उनको पेश करता है। तो इसलिए वो भी हमारी ज़िंदगी में जो होने बहुत ज़रूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत हम पढ़ते हैं। और वो अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। हाँ जी, हम जब खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, अगर चौथी आयत में पढ़ें, तो वो उसने क्या है, वो हमारा बचाने वाला बरगज़ीदा है हमारा, है ना? उसने हमें बचा लिया, उसमें जब हम आ जाते हैं तो जैसे वो उस शहर में जब चले जाते थे तो उनको पनाह मिल जाती थी, वो बच जाते थे, है ना? तो इसलिए ये भी हमारी ज़िंदगी में होने जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और अगले जो 3 शहर हैं, जो बाकी के 3 शहर थे जो यरदन के इस पार थे, उनके नाम अगर देखें तो पहला था क्या था सुरैया? कदास मेरहल, सकम, हरवून, बसरा, जता और जोरान, है ना? तो जो रोबन का था, जद का और मनस्सी का, है ना? ये 3 शहर के हैं, ये 3 हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जो हम खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं, यानी पानी का बपतिस्मा और पाकरू का बपतिस्मा और ये जो हम यानी खुदावंद यीशु मसीह हमें बचा लेता है, हम तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और खुदावंद पे हमारा उम्मीद होती है, ये उनको पेश करते हैं। लेकिन अगले जो 3 शहर हैं, जब हम यरदन के इस पार आ जाते हैं, यानी मुल्के कनान में दाखिल हो जाते हैं, तो वो जो 3 शहर हैं, जो अ, कदास, सकम, है ना? और हरबून, ये 3 शहर जो हैं, ये हमें पाक तरीन मकाम में लेके जाते हैं। ठीक है? तो इसके लिए का हवाला जो है हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19 और 20 आयत। यानी हम मसीहियों के लिए ये 3 जो शहर हैं, 6 शहर हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। समझ लग रही है? इब्रानियों 10 बाब उसकी 19 और 20 आयत। हाँ जी। बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। 21 भी पढ़नी है। हाँ जी, पढ़ लो। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा कायम है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छिट्टे लेकर और बदन को साफ पानी से धोकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरतीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक हाँ जी। दूसरे के साथ। ओके जी, हाँ जी। तो इसलिए ये आगे के जो 3 शहर थे, वो हमें पर्दे के अंदर लेके जाते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या थे, पाक साफ होते थे, रोज़ अपने बदन को पाक साफ करते थे और खून के जो छींटे हैं, जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं वो लगाते हैं अपने ऊपर, वो हमें पाक साफ करता है और उसका इकरार करते हैं, हम उम्मीद में आगे बढ़ते हैं, हम
जो खुदावंद पे हमारा ईमान है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। जब हम मसीह में आते हैं तो उस ईमान में जो खुदावंद की तरफ से हमें मिलता है ना? और दिलेरी हमें मिलती है जब हम पाक साफ होते हैं, है ना? तो वो हमें पर्दे के अंदर लेके जाती है, जिस तरह हम हमारा सरदार काहिन जो है यानी खुदावंद यीशु मसीह, वो पर्दे के अंदर चला गया, है ना? तो उसके वसीले से हम भी पर्दे के अंदर जा सकते हैं। इसलिए ये जो 3 शहर आगे आके मुल्के कनान में थे, बनाए वो इस चीज़ को कह लें पेश करते हैं। तो इसलिए ये 6 शहर जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि वो जो कुर्बान गाह थी वो भी छुपने की जगह थी। तो हमें पता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह उसने हमारी खातिर कुर्बानी दी, हमारी खातिर जो है वो सलीब पे चढ़ा। तो इसलिए हम भागकर उसमें भी छुपते हैं, तो हमारे लिए इसका मतलब है। और ये जो कह लें जो 7वां शहर है या कह लें ये उस क्षमादान को भी पेश करता है जो हम उसमें देखते हैं, उसमें जो पाक मकाम था उसमें हमें पता है कि पड़ा होता था। तो उस पे आज हम इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये 6 शहर जो हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हमें पानी का बपतिस्मा, तौबा और आग का बपतिस्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर जो अगले 3 शहर हैं, वो क्या करना है, हमने सीखा था कि एक-दूसरे का जो भार हम उठाते हैं। जैसे हम दूसरों के लिए दुआएँ करते हैं, जैसे हम मसीह में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें अपने बहन-भाइयों का दर्द जो है वो भी फ़ील होना शुरू हो जाता है। हाँ, कि मुझे निजात मिल गई है तो अब मेरे बहन-भाइयों को भी ये वाली जो सच्चाइयाँ हैं, ये वाला जो है वो पता होना चाहिए, है ना? ताकि वो भी बच जाएँ। तो ये शहर जो हैं ये हमें उस तरफ लेके जाते हैं, यानी पहले हम बचते हैं, वो 3 शहर जो हैं वो इस चीज़ को पेश करते हैं, हमारी निजात, हमारी यानी उसमें मसीह में आना। लेकिन आगे क्या है, हम ये 3 शहर जो आगे आके यरूशलेम में कह लें वो इस चीज़ को पेश करते हैं कि हम दूसरों के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बदलना शुरू हो जाता है, हम पाकीज़गी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा मेल-मिलाप जो है दूसरों के साथ वो तब्दील होना शुरू हो जाता है, यानी हमारा अंदर की इंसानियत जो है जैसे उस दिन वो तब्दील होना शुरू हो जाती है ना? और मोहब्बत में हम यानी खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर आना शुरू जो है वो हो जाती है। तो इसलिए ये अगले जो 3 शहर हैं, वो इस चीज़ को पेश करते हैं कि हम मसीह की मानद बनना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये 6 शहर जो हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल कह लें उसी तरह जैसे कह लें पूरे होते हैं या हमें पता होना चाहिए, है ना? और अ जैसे हमें पता है कि हम अगर पाकीज़गी में नहीं चलेंगे, तो हम खुदावंद यीशु मसीह की मानद नहीं बन सकते, है ना? तो फिर हम कह लें हमारी उस तरह से निजात नहीं है, उस तरह से हमें खलासी नहीं मिल सकती। इसलिए हमें जो ये 3 शहर जो मुल्के कनान के जैसे कह लें यरदन के इस पार बनाए थे, वो भी बहुत ज़रूरी हैं जो और यरदन के उस पार थे, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, है ना? तो ये हमें रूहानी तौर पे इन चीज़ों को पेश करते हैं, यानी हमारी आस, उम्मीद, भरोसा खुदावंद पे, हमारा पानी का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा और हमारा दूसरों के साथ जो मेल-मिलाप है, एक-दूसरे का भार उठाना, पाकीज़गी में चलना, मोहब्बत में चलना, ये सारी ही चीज़ें मिल-मिला के कह लें, हमें उस पाक-तरीन मकाम में, उस नए यरूशलेम में लेके जाती हैं। जिस तरह हमने सीखा कि जो मुल्क कनान में दाखिल हो गए थे इसराइली, लेकिन वहाँ पे भी क्या था वो उनका जो कह लें फतह जो है वो पा ली, तो खुदावंद ने कहा था कि मैं एक-एक करके इन कौमों को या इनको तुम्हारे अंदर से निकालूँगा। तो इसलिए हम जब उसमें उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, तो तब भी हमारी ज़िंदगी में ये रुकावटें या ये सब कुछ आ रहे होते हैं, है ना? तो उसपे हमने फ़तह जो है वो पाते जाना है। तो तब हम उस मुल्क कनान में जो है वो दाखिल हो सकते हैं, है ना? और अ, एक और हवाला हम पढ़ते हैं। अ, कौन है हमारे साथ? अंजना आप निकालना मत्ती की इंजील
अंजना है हमारे साथ? हाँ जी बाजी हूँ मैं। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे और हम 38 39 आयत पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलता है कि तब क्या थी कि यानी सजा जो थी इस तरह की थी कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसा हमने अभी सीखा कि अगर झूठी गवाही देते थे तो जो सजा बाकी उस मत्ती का कौन सा चैप्टर है? 5 चैप्टर 5 चैप्टर बाजी वर्स कितनी थी? 21 आयत भी पढ़ी थे 38 39 आयत। ठीक है वैसे तो पढ़ो सारे ही चैप्टर पढ़ लिए थे, बड़ा अच्छा है, लेकिन चलो हाँ जी पढ़ो। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਖੂਨ ਕਰੇ ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੁਆ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੋ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ। आमीन। हाँ जी आमीन। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो इस्तिस्ना की उसमें किताब में हमने पढ़ा बुक में कि तब क्या थी, सजा क्या थी, जान के बदले जान और दांत के बदले दांत, है ना। लेकिन खुदाम यीशु मसीह हमें अब क्या कह रहे हैं, है ना। खुदाम यीशु मसीह ने वो जो सजा थी, वो जो हमारे ऊपर जैसे कह लें कि इसी की 21 आयत में जो हमने पढ़ा कि तुम सुन चुके हैं कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो जहन्नम की सजा का सजावार होगा, है ना। ये उसमें जब हमने 10 हुक्म सीखे थे तो उस पे बात की थी, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आके अगर इसकी 17 आयत पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अगर उस लिहाज से देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो बल्कि और ज्यादा जो कानून है या जो सजाएं हैं कह लें वो और सख्त कर दी है ना, कि पहले तो खून किया जाता था तो फिर उसकी सजा मिलती थी वो अदालत का उसको लेके जाया जाता था। लेकिन अब हमें कहा जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तू गुस्सा ही करता अपने भाई के ऊपर तो वही सजा मिलेगी, एक कह लें कि जो खूनी को मिलती है। या तूने अगर उसको पागल कहा है, हमारी ये बड़ी आदत होती है, हम दूसरों को अहमक कहते हैं, पागल कहते हैं ये बड़ी ही हमारी आदत होती है ना, जैसे कह लें बच्चों की, तो बच्चों की भी बड़ों की भी तो खुदावंद यीशु मसीह ने आके उसको और ज्यादा सख्त कर दिया, है ना। इस लिहाज से अगर देखें तो अगर कहीं हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर वो हमने खून नहीं भी किया तो इस तरह की सजा हमारे ऊपर लगी हुई है, हम मुजरिम है ना तो लेकिन अगर खुदावंद जैसे कह लें ये 38 आयत में पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना, है ना इन दोनों अगर आयतों में हम देखें तो इसमें एक हमें मिल रही है कि अगर हमने कुछ किया है तो उसकी सजा हमें मिलेगी लेकिन दूसरी तरफ हमें जो 38
आयत है उसमें हमें ये मिल रहा है कि हमने किसी का मुकाबला नहीं करना, शरीर का मुकाबला नहीं करना, या इंतकाम जो है ये हमने नहीं लेना। हमें खुदावंद ने कहा है कि माफ कर, लेकिन हमने कुछ किया हुआ है तो जब तक उसकी माफी हम नहीं मांगते हमें सजा मिलेगी, जब तक हम माफी नहीं मांगते, है ना। इसलिए ये दोनों ही बातें इस तरह पूरी होती हैं जो हम ए हमारे बाप पढ़ते हैं ना कि हमारे कसूर खुदावंद माफ करेगा अगर हम भी दूसरों के कसूर माफ करेंगे, है ना। तो इसलिए ये दोनों बातें जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए कि हमने इंतकाम नहीं लेना, हमने बदला नहीं लेना, हमें खुदावंद ने ये मना किया है ना। लेकिन अगर किसी हमारे बहन भाई ने कुछ ऐसा कर दिया है तो उसे हमें माफ करना है ना। बल्कि उसकी कोई कह रहा है एक कोस मेरे साथ चल, तो खुदावंद कहता है कि तू 2 कोस उसके साथ चल, उसकी मदद कर, यानी जितनी हम कर सकते हैं उससे ज्यादा यानी खुदावंद ने कहा है कि अगर कोई कर्ज मांगे तो उसे मुंह ना फेर, है ना। अगर हमारे पास है तो हमें देना चाहिए। अगर किसी ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है तो बजाय कि हम उससे बदला लेने की, हम दूसरा भी उसके आगे करते हैं ना। इसका साफ-साफ ये मतलब नहीं है कि कोई मार रहा है तो आगे खड़े, है ना? ये बात नहीं है, लेकिन खुदावंद रूहानी तौर पे बात कर रहा है ना? कि हमें उनसे बदला नहीं लेना, हमें कोई उसके साथ गुस्सा, नाराज़गी, ये जो है नफ़रत हम रखते हैं, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं कि उन्हें मेरे नाल इंज कीता है, तो मैं भी जब तक बदला ना ले लूँ, है ना? तब तक हमें चैन नहीं आता, तब तक हमें हमारे दिल में उसके लिए ग्रज जो है, नफ़रत जो है, गुस्सा जो है वो भरा रहता है। इस वज़ह से खुदावंद ने कहा कि हम उसको माफ़ करें। हम उसका बदला जो है वो इसी तरह ले सकते हैं कि हम खुदावंद के हाथों में दें। जो भी मामला हो गया है, किसी ने कुछ हमारे साथ बदी की है, किसी ने कुछ बुरा किया है, जिसकी वज़ह से हमारे यानी मुँह पे कह लें तमाचा मारना, ये भी होता है कि किसी ने हमारी बेइज़्ज़ती की है, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बातें की हैं, है ना? तो हम उसका बदला ना लें। हमारी जो ज़िल्लत है, हमारी जो रुसवाइयाँ, हमारी जो सारी शर्मिंदगियाँ हैं, वो हमने उसमें खून का जब हमें सीखा था तो क्या था, खुदावंद ने वो अपने ऊपर ले ली थी, क्योंकि खुदावंद की दाढ़ी नोची गई। वो हमारी सारी जो ज़िल्लत थी, हमारी जो सारी शर्मिंदगी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुँह पे ले ली थी, है ना? जब उसकी दाढ़ी नोची गई, जब उसके मुँह पे थप्पड़ मारे गए थे, है ना? मुक्के मारे गए थे, उसके बाल खींचे गए थे, उसकी दाढ़ी खींची गई थी, है ना? तो वो सारी शर्मिंदगी जो थी हमारी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी। इसलिए अब हमें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर से या हमारे चेहरे से कह ले वो जो नूर है या वो जलाल जो है वो तब ज़ाहिर होगा जब हम उसको माफ़ करेंगे और हमारे चेहरे से या हमारी सूरत से दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह नज़र आएगा। जिस तरह के अभी जो लूका के उसमें हमने पढ़ा कि खुदावंद ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। है ना? तो इसका मतलब है कि हमें अ दूसरों को माफ़ करना है ना? जिस तरह ये हमने सीखा कि वहाँ पे तो सज़ाएँ थी पुराने अहदनामे में कि आँख के बदले आँख निकाली जाती थी, दाँत के बदले दाँत, या किसी की जान ली है तो उसकी सज़ा हमने गिनती की, उसके किताब में पढ़ा था कि खुदावंद ने कहा था जब तक उस खूनी का खून जो था वो ज़मीन पे नहीं बहाया जाता था, तब तक माफ़ी जो है वो नहीं होती थी। क्योंकि खुदावंद ने कहा कि अ क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान रहता हूँ और इस लानत को या इस बुराई को इसमें से ख़त्म करो, है ना? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आके वो सारा जो था वो अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हमारा जो जैसे इस्राएलियों ने, यानी वो जो फक्की और फरीसी थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया तो खुदावंद ने उनको माफ़ किया
اور خدا نے یہی ہمیں سکھایا، کیونکہ وہ ہمارے سردار کاہن نے اس طرح کیا، اور وہی کیونکہ ہم کیا ہیں اس کے ماننے والے ہیں یا اس کے فالوور ہیں تو جو ہمارے گرو نے کیا، جو خدا یسوع مسیح نے کیا، جو ہمارا خدا ہے، ویسا ہی اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہا کہ ہم بھی ان سب کو معاف کریں۔ کہیں کسی نے ہمارے ساتھ کچھ بھی زیادتی کی ہے تو ہم جو ہیں اس کو خود سزا نہ دیں۔ خداوند دینا چاہے تو وہ دے، لیکن ہم خود سے کچھ اس کی سزا جو ہے وہ نہ کریں۔ جیسے یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دانت کے بدلے دانت تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ تھی، ہے نا؟ تو یہ اب ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں خداوند نے جج نہیں بنایا۔ ہم جو ہے زمین پہ رہتے ہوئے جس طرح ہمارا جیسے کہہ لیں گرو ہے، جس طرح ہمارا جو استاد تھا اسی طرح ہم بھی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی، خداوند یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے نا؟ تو اس لیے ہم بھی زمین پر شہزادے اور شہزادیاں نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بالکل جیسے کہہ لیں کہ غلط ہے۔ جب ہمارا استاد جو تھا وہی کہہ رہا ہے کہ میں میری اس زمین کی بادشاہی نہیں ہے، تو ہم کیسے زمین پہ کیسے شہزادے اور شہزادیاں ہیں؟ ہم آسمان پہ شہزادے اور شہزادیاں ہوں گے اور یہ جو برکتیں ہیں یا جو بھی وہ ہمیں وہاں پہ جا کے ملیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہم جو ہے انتقام نہ لیں، بدلہ نہ لیں۔ دیکھیں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس کے سر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں تو محل ملے، ہمیں تو وہ سارا برکتیں ملے، ہے نا؟ گاڑیاں ہوں، یہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ضرورت کے مطابق ہماری وہ ہمیں دیتا ہے، مہیا کرتا ہے نا؟ لیکن ہم خود سے دولت کے پیچھے نہ بھاگیں یا اچھی ایسی جو برکتیں ہم ذہن میں ایک جو یہ کچھ کہہ لیں تعلیمیں ایسی بٹھائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تاڑے کو سارا کچھ ہونا چاہیے، بنگلیاں لیاں دعاواں کیتیاں جاندیاں نے، ہے نا؟ اور پیسے اس کے نبی کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور وہ جو 1000 روپیہ فرض کریں وہ 10,000 بنا دیتا ہے، دعائیں ایسی کرتا ہے نا؟ نہیں، ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ والی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی۔ ہم یہاں پہ جس طرح ہمارا استاد تھا، جیسے کہہ لیں مسافر کی خانہ بدوش، جیسے ہم کہہ لیں کہ زندگی گزار کے گیا، جس طرح باپ ابراہیم تھا، وہ امیر آدمی تھا لیکن وہ ٹینٹ میں زندگی گزارتا تھا، ہے نا؟ اس نے جو کہہ لیں پکے گھر یا مکان میں نہیں گئے، کیونکہ اس کو پتا تھا میری جگہ جو ہے، میرا گھر جو ہے وہ آسمان پہ ہے۔ اس لیے ہماری بھی جو رویا ہے، ہمارا جو فوکس ہے، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف لگی رہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پہ خداوند اس کا یہ رحم ہے، اس کا یہ طرز ہے کہ وہ برکتیں دے رہا ہے، لیکن ہمارے آنکھیں جو ہیں آسمانی برکتوں کے لیے لگی رہیں۔ ہم جب بھی دعا کریں کوشش کریں کہ روحانی برکتیں مانگیں، جسمانی جو ہے برکتیں کہ خدا مجھے گھر دے دے، مجھے گاڑی دے دے، میرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ نہ مانگے۔ متی کی انجیل میں میرا لکھا ہوا ہے کہ ان باتوں کی فکر نہ کرو، یہ تمہارے آسمانی باپ کو پہلے سے ہی پتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صاف صاف کہ خدا کا مطلب ہے، خدا یسوع مسیح کا، کہ وہ آسمانی جو برکتیں ہیں وہ ہم مانیں۔ جیسے کہ میں پتا ہے کہ خدا نے کہا کہ پاکرو کے بارے میں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو فوکس ہے، ہماری جو رویا ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، جیسے باپ ابراہیم کی تھی، اس کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی۔ یعقوب نے بھی ایوب نے بھی یہ کہا کہ یہ چاہے میرا بدن جو ہے وہ فنا ہو جائے، لیکن میری آنکھیں اس کو اپنے نجات دہندہ کو دیکھیں گی، ہے نا؟ تو ہماری بھی رویا یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھیں، ہماری روح جو ہے وہ بچائے کہ ہم جسمانی ضرورتوں کی، جسمانی لڑائی جھگڑے میں اور اس میں پڑے نہیں اور جدوں تک میں وہ دیکھو بدلا لا لا وہ بےزتی نہ ہو جائے، مینوں ٹھنڈ نہیں پہنی۔ بڑے ہمارے لوگوں کی ایسی زمینوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، وہ زمینیں یہیں پہ رہ جانی ہیں، ہے نا؟ یہ ساری جو دنیاوی چیزیں ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔
हमारे यीशु की कितनी बेइज्जती हुई। हमारे जो आगे खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द थे, उन्होंने मार खाते रहे, और हमें कोई थप्पड़ मार दे, हमारे खिलाफ कोई बात कर दे, तो वो हँसी कहने नहीं मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। ठीक है, हमारी जब बेइज्जती हो तो हमें मतलब खुश होना चाहिए कि हम जब सताए जाते हैं, कलाम में लिखा है, तो हमें खुश होना चाहिए कि खुदावंद की खातिर हम सताए जा रहे हैं, है ना? इसका अजर हमें मिलेगा। तो इसलिए दुनियावी चीज़ों की, दुनियावी उसमें ना फँसे। हमारे ये जो रूहानी शहर है, हमारी शहर पनाह जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, और हमें बदला नहीं लेना। ये खुदावंद का काम है। हम जज होंगे उस 1000 साला बादशाही में। जो दुल्हन है वो उस वक़्त जज होगी, उस वक़्त वो शहज़ादे और शहज़ादियाँ होंगी। इसलिए यहाँ पे हमारी जैसे कह लें वो जैसा बाप इब्राहिम ने ज़िंदगी गुज़ारी, खाना बदोश की तरह, जैसे कह लें टेंटों में वो ज़िंदगी गुज़ारते हैं, मुसाफ़िर की तरह। जैसा याकूब ने भी कहा कि मेरी मुसाफ़त के जो दिन हैं, जब वो फ़िरौन के सामने उसको लेके गया, है ना? तो इस तरह हम भी यहाँ पे परदेसी और मुसाफ़िर हैं। हमारा ये घर नहीं है, दुनिया जो है हमारा घर नहीं है, हमारा घर आसमान पे है, हमारा घर वो नया यरूशलेम है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो पनाह है, हमारी जो छुपने की जगह है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, और हमें उसी के लिए जैसे कह लें कोशिश करनी है, उसी में बढ़ना है, वो मेल-मिलाप को बढ़ाना है। वो जो हमारे अंदर अभी कमियाँ हैं, हम पाकीज़गी में नहीं बढ़ रहे, है ना? हम मोहब्बत में नहीं बढ़ रहे, हमारा दूसरों के साथ अभी तक नफ़रत है भरा हुआ, गुस्सा भरा हुआ है। हम लड़ाई-झगड़े में ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, है ना? बुग़्ज़ भरा हुआ है हमारे दिलों में। तो इसका मतलब है हम उस पाक-तरीन मकाम में जाने की तैयारी नहीं कर रहे, है ना? तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों से इसको निकालें, और उस मुल्क कनान में, उस पाक तरीन मकाम में पर्दे के अंदर दाखिल होना है। तो ये सारी जो है गंदगी, नापाकी हमें यहीं छोड़ के जानी है। पाक बनना है, यीशु की मानद बनना है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मुझे भी खुदावंद अपने इरफान में बढ़ाए, फ़ज़ल में बढ़ाए, ताकि खुदावंद हम पे रहम करे, तरस खाए। हमारी आँखें जो हैं उस अपने निजात दहिंदा की तरफ, बचाने वाले की तरफ लगी रहें, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड जीसस। जी, बैक टू सराफीन। सराफीन है हमारे साथ? हाँ जी, ओके खुदावंद जी। आपको बरकत दे। बहुत अच्छा आज का मैसेज था। इसके लिए हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। अब हम क्लोजिंग प्रेयर सिस्टर वफ़ा के साथ करेंगे। सिस्टर वफ़ा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे तो आ रही है। लेकिन उनको नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, वफ़ा। हाँ जी, हाँ जी, मेरी प्रेयर है ना। हाँ वो जी। नीचे शो मैं ना छत पे आ रही थी, इसलिए मैंने ऑन नहीं था किया। चलें। वो ना एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी है छोटी रोशनी, उसके लिए, उसको फीवर है, उसके लिए प्रे करनी। अच्छा, और किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? अपने परिवार ਲਈ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਜਾਈਏ ਜੀ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। मुमताज़ की तबीयत ठीक नहीं है वफ़ा, और मेहर छोटी हाँ बेटी जी, की। हाँ जी। अच्छा, ਉਹਦਾ मुमताज की ਡੈਡੀ तबीयत ठीक थी, रोशनी की तबीयत ठीक नहीं, और इनकी वो दीवार के लिए है ना। ਲਵੀ हाँ, ਵੀ ਹੋਇਆ और ਸਾਰੇ सबको ਮੈਂ बुखार हुआ हुआ है। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ठीक है, ठीक। चलें, सही, ठीक। शुरू करूं? हाँ जी। हाँ जी। कुदूस कुदूस कुदूस, आसमान और जमीन को बनाने वाले, हम सब के खालिक मालिक, आज हम सब तेरे आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, रहता तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने खुदा हमारी खातिर जान देकर खुदा तूने सरदार काहिन की तरह खुदा हमारे सारे गुनाह खुदा ले लिए,
اور تو خداوند کے حضور میں ہماری شفایت کے لیے آج بھی کھڑا ہے خداوند. تیرا Yes, شکر Lord. کرتے ہیں Yes, کہ Lord. تو Yes, ہمیں Lord. پیار کرتا ہے خداوند. یہ تیرا Yes, پیار ہی ہے Lord. کہ تو ہر وقت اہدا معافی کے دروازے اپنے بچوں کے لیے کھولے رکھتا ہے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ ہم میں سے جو بھی اختہ آج جس نے بھی اختہ تیرے کلام کی آواز کو سنا ہے خدا, یہ اختہ کلام کا بیج جو اختہ ہمارے دلوں میں بویا گیا ہے خدا, یہ 100 گنا پھل لانے والا ہو خدا. اور جتنے لوگ بھی اختہ نہیں آ سکے خدا, ان سب کی بھی مشکلات کو دور کر خدا, رکاوٹوں کو دور کر خدا, تاکہ وہ بھی اختہ تیرے کلام کی خدا پیاس کو اختہ سمجھے اور اختہ وہ آئے اور اختہ اس اختہ آب حیات سے ہمیشہ کے لیے اختہ مفت پانی پیے خدا, اور ہمیشہ کی Yes, زندگی Lord حاصل کریں Jesus. خدا. تیرا شکر کرتے ہیں خدا کہ تو اختہ روز ہمیں اختہ موقع دیتا ہے خدا اپنی آواز سننے کے لیے خدا. ہم اختہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہے خداوند کہ جو اختہ تیری آواز کو سنتے ہیں آج بھی ہے خداوند, اور اختہ تو ہم سے کلام کرتا ہے خدا. تیرا شکر کرتے ہیں Yes, تو Lord. ہماری ساری گندگی اور ناپاکی کو دھوتا ہے خدا, اور ہمیں اپنے پاس آنے دیتا ہے خدا. تیرا شکر کرتے ہیں خدا, اور اختہ تیرے آگے اب منت کرتے ہیں خدا. ایکدا ہم سب ایکدا نا چیز لوگ ایکدا تیرے آگے ایکدا اپنی اپنی درخواستیں لے کر آئے ہیں خدا. تو جانتا ہے کہ ہماری آنکھیں ہر وقت تیری طرف لگی رہتی ہیں خدا, کہ جس طرح لونڈی کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں, اسی طرح خدا ہماری آنکھیں تیری طرف لگی ہیں کہ کب تو ہم پر رحم کرے خدا. تو ہم پر رحم کر, ہمارے تمام گناہ Yes, غلطی Lord. قصور کو معاف کرے خدا, اور ایکدا ہمیں شفا بخش ہے خدا. جتنے بھی ایکدا لوگ بیمار ہیں اس گروپ میں ایکدا, خاص کر کے روشنی کے لیے ایکدا, ممتاز کے لیے خدا دعا کرتے ہیں, اور بھی ایکدا کوئی بھی بیمار ہے خدا, ایکدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں اے خدا. تو Yes, ہمارا Lord. شافی Yes, خدا Lord. ہے خدا. تو نے ایکدا اپنا لہو بہایا ہے خدا, اس خون سے ایکدا ہمارے لیے شفا جاری ہوتی ہے خداوند. ایکدا تیرے کلام میں لکھا ہے ایکدا تیرا نام جہاں لیا جاتا ہے خدا, تیرے نام سے ایکدا اس سب معجزات ایکدا رونما ہوتے ہیں خداوند. ایکدا آج تیرا نام لیتے ہیں خدا, تیرے لہو کی قدرت کو مانگ لیتے ہیں اپنے اوپر ہے خدا. ایکدا کیونکہ تو ہمارا شافی خداوند ہے خداوند, تو Yes, ہمارا Lord. شافی Yes, Lord. مسیحا ہے Yes, خداوند. Lord. ایکدا جو کہ ایکدا ہمیں ایکدا ہر وقت اچھی اچھی چیزوں سے ایکدا نوازنا چاہتا ہے خدا. وہ ہم ہی ہے کہ ایکدا اپنی گناہوں غلطی قصور کی وجہ سے ایکدا تجھ سے دور ہو جاتے ہیں خدا, تو ہم زخمی ہو جاتے ہیں خدا, کیونکہ ایکدا ابلیس ہمارے ارد گرد ایکدا ہر وقت دھاڑتا پھرتا کہ کب کسی کو پھاڑ کھائے خدا. ایکدا میرا ایمان ہے خدا کہ ہم تجھ سے دور جب جاتے ہیں خدا, پھر ہمیں مشکلیں مصیبتیں ایکدا آ گھیرتی ہیں خدا. لیکن جب ایکدا ہم تیرا نام لیتے ہیں, تیرے میں آنکھ چھپ جاتے ہیں اور ایکدا محفوظ ہو جاتے ہیں خدا, ایکدا تو ایکدا ابلیس ایکدا ہم سے بھاگ جاتا ہے خدا, اور ہم دوبارہ سے ایکدا تو ہماری مرہم پٹی کرتا ہے, ہمیں دوبارہ سے بحال کرتا ہے خدا. آج Yes, جتنے Lord. بھی ایکدا Yes, گروپ Lord. ممبرز ہیں ہم سب بحالی کی ایکدا دعا کرتے ہیں تیرے سے خدا, کہ تو ہمیں بحال کر ایکدا, جس ایریا میں ہم کمزور ہیں خدا, تو ایکدا اس ایریا کو ایکدا اس ایریا میں ہمیں ایکدا زور بخش خدا. تیری آگے محنت کرتے ہیں خدا, تو ہماری تمام کمزوریوں میں ایکدا ہمیں زور بخش خدا. تیرے آگے محنت کرتے ہیں خدا, تو ہم میں سے ایک کو چھو ہے خدا, ہر طرح سے ہماری نگہبانی مدد حفاظ کرنا ایکدا. جب ابھی ایکدا ہم سب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں خداوند, ایکدا ہم سب کی مدد حفاظت کرنا ہے خدا. اب جب کل ہم دوبارہ ایکدا ملے, ہم سب ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہو خدا. ایکدا اس گروپ کو چلانے والی خادمہ کے لیے روز ایکدا تیری دعا ایکدا تیرے کلام کو ایکدا ہم تک پہنچانے کے لیے ایکدا آتی ہیں خدا. یہاں پہ ایکدا ان کو خاص اپنی پناہ میں رکھنا, ان کے ارد گرد اپنے پاک نیک فرشتگان لگانا ہے خدا. ایکدا تجھے Yes, Lord. برکت پہ Yes, Lord. برکت دینا ہے خدا, اس کے خاندان کو برکت پہ برکت دینا ہے خدا, ان کے بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے خدا, ہر Yes, Lord. ابلیسی قوت سے ایکدا تو محفوظ رکھنا ہے خدا. ان کے منسٹری جو بھی ایکدا ان کی ہسبینڈ وائف کی ایکدا, اس میں تو ان کو دن دگنی رات چگنی ایکدا برکت عطا فرمانا ہے خدا, تاکہ Amen. وہ اسی طرح ایکدا تیرے کلام کو ایکدا لوگوں تک پہنچاتے پھرے ہیں خدا, ایکدا کلام کی خوشخبری کو سناتے پھرے ہیں خدا. تیرے آگے محنت کرتے ہیں خدا, تو ایک کو چھو ہے خدا, اور ہم سب کو برکتوں پہ برکتیں دینا ہے خدا. یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے تیرے پیارے بیٹے مسیح کے وسیلے سے, آمین آمین. 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 اب ہمارے خدا ان کا فضل, اس کی تسلی, اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے, جب تک کہ خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا. آمین. God bless you. آمین آمین. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, سارے نوں.